Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 1.2, question number third. Question number third. Class 9th, exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2. अभी 2 और 3 डेज वीडियो अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि फर्स्ट डोज जो वैक्सीनेशन की है वो मैंने कंप्लीट करवाई थी, इसलिए थोड़ा फीवर हो गया था, तो इसलिए 2 और 3 डेज वीडियो अपलोड नहीं हो पाई. सॉरी फॉर दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. Locate root 2 on number line. Locate root 2 on the number line. Locate root 2 on the number line. Okay. So we know that root 2 is a irrational number. तो अपन irrational number को रूट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन होएगा, रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. Now draw a number line. Draw a number line. Its middle point represent 0. Its middle point represent 0. Okay. Right of 0 1 2 3 and left of 0 -1 -2 and -3. Okay. Taking O as a origin point. O as a origin point. Okay. So OA is equal 1 unit. OA is equal 1 unit. मैं इस डायग्राम को थोड़ा बिग करके आपको समझाऊंगा. This is number line 1 2 and 3, -1 -2. Okay, this is number line. First of all, draw a number line. First point is draw a number line. Its middle point represent 0. Now OA is equal 1 unit. This is point A. OA is equal 1 unit in the positive direction of origin point O. Okay, this is origin point. Okay, or take a OA is equal 1 unit in the positive direction of O. This is 1 unit. Okay, and AB perpendicular to the number line. AB is equal also 1 unit. AB is equal also 1 unit. Perpendicular line, the line formation of 90-degree angle with the other line, then the line is known as perpendicular line. It means AB perpendicular to number line, it means OA. AB perpendicular to OA and AB is equal 1 unit. Joined AB
अब AB को अगर अपन फाइंड करेंगे तो 1 यूनिट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, अब पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी थर्ड साइड फाइंड करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो राइट एंगल का अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, ये OB स्क्वायर के इक्वल आएगा। और OB इज इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होएगा तो √2, यानी वैल्यू ऑफ OB क्या आ गई, √2। यहाँ तक मैं आपको ये करवा देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे। तो ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन। ओके, ड्रॉ ए नंबर लाइन। टेक O as a origin point, टेक O as a origin point, origin point, O as a origin point. Let OA is equal 1 unit. Origin point on it represent O. Let OA is equal 1 unit. OA is equal 1 unit and draw AB perpendicular to OA such that AB is equal 1 unit. AB is equal 1 unit. Okay, and joined OB, joined OB, OB। जो हमने किया वही हमने राइट किया। ओके, ड्रॉ ए नंबर लाइन। ओके, दिस इज नंबर लाइन। टेक 0 as a origin point, it represent O. Okay, let OA is equal 1 unit and draw AB perpendicular to OA such that AB is equal also 1 unit and joined OB. This is a right angle triangle. This is a right angle triangle. Right angle triangle. So in right angle triangle, in right angle triangle, by using Pythagoras theorem, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस होगी अपोजिट टू राइट एंगल, OB स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इट मीन्स 2। दिस इज वैल्यू ऑफ OB स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ OB स्क्वायर इधर ट्रांसफर होएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। OB की वैल्यू क्या आ गई, √2, यानी इट्स लेंथ √2। ये एक प्रोसेस हो गया, ये √2, ये लेंथ है ना, इस साइड की लेंथ है ये √2 सेंटीमीटर। नाउ विद सेंटर O, अब सेकंड प्रोसेस क्या करनी है अपन को, विद सेंटर O, विद सेंटर O and OB as radius, and OB as radius,
OB as radius. Draw an arc which cut the number line at P. Draw an arc. Draw an arc which cuts the number line. Which cuts the number line at P. ओके, ये एक सेंटर है, एज दिस इज एज ए सेंटर. इतनी लेंथ का अपने को, इतनी रेडियस का एक आर्क कट करना है. ऐसे ऐसे यहाँ पे जो कैंपस है उसकी बीक, ओके, निडल, और यहाँ से इतनी रेडियस का एक आर्क कट करोगे तो ये आर्क, व्हाट इज द मीन ऑफ आर्क? आर्क इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल. अब ये मान लिया ऐसे सर्कल होएगा, ओके, तो ये भी रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी है हमने फाइंड की है √2, और ये भी क्या है, रेडियस है. अब कोई भी सर्कल होता है उसकी सारी रेडियस क्या होती है, सेम. तो ये आर्क नंबर लाइन को P पर कट करता है, ओके. तो ये जो पॉइंट P है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा. और वैल्यू ऑफ √2 वी नो दैट 1.414. तो इसकी लेंथ कितनी है, √2, बट √2 अपने को नंबर लाइन पे चाहिए. तो ये भी √2 है और ये भी रेडियस है इस सर्कल की. सर्कल ये होता है और इसका कोई भी पार्ट होता है वो आर्क होता है. तो आर्क की सारी रेडियस और सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, सेम होती है. तो इतनी लेंथ का हमने एक आर्क कट किया, वो आर्क नंबर लाइन को पॉइंट P पर क्या करता है, कट करता है. ठीक है. देन OB इज इक्वल √2 यूनिट. देन OP भी रेडियस है और OB भी क्या है, रेडियस है, √2 यूनिट की है. 10 P रिप्रेजेंट 10 P रिप्रेजेंट √2 on the number line, represent on the number line. ओके, तो इसमें अपन ने क्या किया, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताया कि ड्रॉ ए नंबर लाइन, टेक O एज ए 0 एज ए ओरिजिन पॉइंट, इट रिप्रेजेंट O. ओके, लेट OA इज इक्वल 1 यूनिट. अब ये √2, ये वैल्यू है ना, ये √2 चाहिए अपने को. ओके, ये यहाँ वाली वैल्यू √2 चाहिए. जैसे √5 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये 2 यूनिट टैग करेंगे और ये 1 यूनिट टैग करेंगे. तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 हो गया. 5 किसके इक्वल आ जाएगा, OB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. तो OB क्या हो जाएगा, स्क्वायर ट्रांसफर होएगा तो √5 हो जाएगा. तो √5 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये यूनिट कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट, OA 2 यूनिट और ये 1 यूनिट. ये वैल्यू इस प्रकार से सेट करनी होती है दोनों साइड, परपेंडिकुलर एंड बेस, कि इसका हाइपोटेनस कितना होना चाहिए जितना अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो ड्रॉ ए नंबर लाइन, टेक O एज ए 0 एज ए ओरिजिन पॉइंट, 0 एज ए ओरिजिन पॉइंट, इट रिप्रेजेंट O. लेट OA इज इक्वल 1 यूनिट एंड ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA. यानी ये लाइन इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन को अपन परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे. तो AB परपेंडिकुलर टू OA सच दैट AB इज इक्वल 1 यूनिट. ओके, एंड जॉइंड OB. दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. अब बाय यूजिंग हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो अपोजिट
साइड ऑफ राइट एंगल इट मीन्स हाइपोटेनस, तो उसका स्क्वायर होएगा वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होएगा। इट मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 2। अब स्क्वायर ट्रांसफर होएगा, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। अब ये हमने फाइंड की √2 आ गया। नाउ विद सेंटर O and OB as a radius, draw an arc which cuts the number line at P. With center O and OB as a radius, draw an arc which cut the number line at P. Then OP is equal √2 यूनिट, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ कितने की आ जाएगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगी √2 की। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। Thus P रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो ये आपको सोल्व करा दिया। इसी प्रकार √5 शो करना है तो OA 2 और ये 1 टैग करेंगे अपन। तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी इसकी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 प्लस 1 5 इसके इक्वल होएगा OB स्क्वायर के इक्वल होएगा 5, तो OB के इक्वल होएगा √5। अब वही काम करना है अपने को। विद सेंटर O, OB एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट P। तो OP इज इक्वल √5 यूनिट आ जाएगा। 10 P रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को भी आप इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्लास एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो वो अपन स्किप कर देंगे। क्लास एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। राइट द डेसिमल in write the following in decimal expansion. Write the following in decimal expansion form, decimal form, and say what kind of decimal expansion, and say what kind of decimal expansion, what kind of decimal expansion, ये आपको बताया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। each has, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग जो आफ्टर पॉइंट 2 और 3 और 4 डिजिट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस नहीं करेंगे, वो तो क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गई, यानी स्टॉप हो जाते हैं। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करते हैं आफ्टर पॉइंट, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक जो रिपीट नहीं हो रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल फॉर्म में होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो भी रेशनल होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो क्या होता है, इरेशनल होता है।
फर्स्ट है आपके पास 36/100। वैसे इसमें डिवाइडेंड में डिवाइजर का डिवाइड करके आपको बताना है इसमें। तो ये इससे 3 भी स्मॉल है 100 से, तो 6 को अपने ज्वाइन कर लिया। अब 36 भी स्मॉल है, अब स्मॉल में बिग का डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा नहीं तो, और रिमाइंडर डज नॉट नेगेटिव। तो अपनी हेल्प कौन करेगा? पॉइंट। तो टैग ए पॉइंट, पॉइंट ने थ्रू किया 0। अब 100 3 सा कितना हो गया? 300। ओके, अब 60 आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से क्या होगा? स्मॉल ही होगा। अब पॉइंट ने 0 अगेन थ्रू किया और ये 106 सा कितना हो गया? 600, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 36/100। अब किसी नंबर में 10 का, 100 का, 1000 का डिवाइड करना बहुत इजी होता है। अब डायरेक्ट पता चल रहा है 2 0 है तो यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट स्किप करके, और 1 है थर्ड टाइम तो यहाँ पे पॉइंट टैग कर लेंगे। तो 2 0 है तो 2 डिजिट राइट साइड से क्या कर देंगे? स्किप, और टैग ए पॉइंट। अब ये आपको पता है इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट ये प्रोसेसिंग हुई 2 डिजिट और फिर क्या हो गया? स्टॉप। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया इट मीन्स टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही वर्क करना है आपको, एक्सपेंशन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट है 1/11। तो 1 में अपन को क्या करना है? डिवाइड करना है 11 का। ओके, ये डिवाइडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया। अब ये इससे स्मॉल हो गया, स्मॉल में बिग नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते, तो टैग के पॉइंट ये हो गया 10 हो गया। बट अब भी ये इससे क्या है? स्मॉल ही है। तो ये तो फ्री का 0 इसने थ्रू किया है। अब इससे बाई 4 से एक 0 और लेते हैं। अब पॉइंट क्या होता है? मशीन ऑफ 0। ओके, बट 2 टाइम 0 ले लिया ना हमने, तो ये डिवाइड क्या हो गया? ब्रेक हो गया, और यहाँ पे कोशेंट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 11 1 जा क्या हो गया? 11 9 जा 99, ये आ गया 1। अब डिवाइडेंड 1 था, डिवाइडेंड क्या था? 1, और ये रिमाइंडर भी क्या आ गया? 1। तो ये जो डिवाइड है ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, यानी ये 0 9 0 9 0 9 ये चलते जाएंगे। ये क्या आ गया? ए। लेट डिवाइडेंड को आपने ए लेट कर लिया। अब रिमाइंडर कभी भी डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए तो जो कोशेंट में डिजिट आए हैं वो रिपीट होंगे। वो क्या होंगे? रिपीट होंगे, यानी 1 ये आगे 2 टाइम 0 लेगा और 9 पे डिवाइड होएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। ओके, तो ये भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए तो जितने लेटर्स इसमें आई हैं, जितने डिजिट आई हैं वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो 1/11 इज इक्वल 0.09 09 09, ये ऐसे चलता रहेगा। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं क्या? 0.09, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो बार साइन लगा दिया। अब ये क्या है? अब ये साइन क्या बोलता है? डॉट डॉट डॉट। ये तो बोलता है कि कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डिवाइडेंड जो है उसके इक्वल क्या आ जाए? रिमाइंडर आ जाए। तो कोशेंट में जितने लेटर्स हैं वो क्या होंगे? रिपीट, और वहीं पे आप डिवाइड है वो स्टॉप कर देना। ओके, थर्ड पार्ट इज मिक्सचर फ्रैक्शन है।
4 1/8। तो इसको अपन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्सचर फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, 4 8 जा या 8 4 जा 32 और 1 प्लस कर देना, ये प्लस होएगा तो 33 हो गया। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8 हो गया। ओके, नाउ 33 में 8 का डिवाइड करना है। ओके, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉल ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई डिजिट तो है नहीं, तो अपन टैग के पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा स्मॉल ही रहेगा, नहीं तो डिवाइड रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4। रिमाइंडर स्मॉल ही होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। तो ये आ गया अपने पास 33/8 का आंसर 4.125। तो इसका यही आंसर होएगा। टर्मिनेटिंग हो गया, स्टॉप हो गया। ओके, स्टॉप हो गया ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, फोर्थ पार्ट इज थ्री अपॉन 13। तो 3 और 13 डिवाइजर हो गया, 3 हो गया डिवाइडेंड। तो ये स्मॉल है, स्मॉल में बिग का डिवाइड नहीं कर सकते, टैग के पॉइंट। 13 2 जा 26, 4 आ गया। 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर, पॉइंट थ्रू किया इसने, पॉइंट ने 0 थ्रू किया, 10 हो गया। अब ये स्मॉल है, तो 1 0 और अपन टैग करेंगे पॉइंट से, तो बिग हो गया डिवाइड। अब 7 जा हो गया, 13 7 जा हो गया 91, रिमाइंडर 9, पॉइंट थ्रू किया, ये हो गया 13 6 जा 78, 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1 ये हो गया। अब इसने 0 थ्रू किया पॉइंट ने। ओके, अब 9 जा 13 9 जा 117 3। अब 3 क्या था, ये रिमाइंडर है ना, ये क्या था डिवाइडेंड। तो लेट a इज इक्वल 3। तो रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आ गया, डिवाइडेंड की। तो ये इतने अक्षर क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो 3/13 इज इक्वल क्या आ गया, 0.230 769। ये इतने लेटर्स क्या होंगे, रिपीट। तो ये अपन क्या राइट कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जितने डिजिट रिपीट होंगे वो उस पे बार साइन आ जाएगा। ओके, ये इसकी कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगी, इसकी कॉपी पेस्ट, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस करेगा। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ तो ये 4 पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये 0 आ जाए तब तो ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड के इक्वल क्या आ जाए रिमाइंडर। तो जितने लेटर्स, जितने डिजिट इसमें आ गए वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्लियर? नाउ
2/5 पार्ट है 2/11 2/11 तो लेट a इज इक्वल टू डिवाइडेंड को a लेट कर लिया हमने 2 11 डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया है के पॉइंट 20 हो गया 1 जा 11 9 पॉइंट ने 0 थ्रू किया 8 जा 88 2। अब ये 2 क्या आ गया, ये डिवाइडेंड ही आ गया, रिमाइंडर डिवाइडेंड के इक्वल हो गया, तो ये लेटर्स रिपीट करेंगे 2/11 इट मीन्स 0.181818 ये ऐसे रिपीट करेंगे। इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, बार साइन लगा लेंगे 0.18 बार साइन। तो ये इसका कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको, डेसिमल एक्सपेंशन ओके। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट 3 to 9/400। इसको शॉर्टली अपन बता सकते हैं कैसे, वैसे मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो मैं इस 400 को इसमें डिवाइड कर दूंगा 3 to 9 4 into 100 ओके। अब इसमें मैं कट कर लेता हूं क्या, विदाउट डिवाइड किए 4 के टेबल से 4 8 जा 32 रिमाइंडर 0 आ गया 9 कैरी किया ओके। तो 4 2 जा 8 रिमाइंडर आ गया 9 - 8 1 और पॉइंट टैग किया तो 1 का क्या हो गया 10 क्योंकि पॉइंट ने 0 थ्रू किया और 4 2 जा 8 2 रिमाइंडर आ गया पॉइंट ने 0 थ्रू किया 20 हो गए 4 5 जा 20 यह आ गया। इसमें इसका डिवाइड किया पॉइंट में कितना आ गया 82.25/100। अब 2 टाइम 0 है तो ये पॉइंट आफ्टर 2 टाइम 0 1 है, तो ये 0 जो पॉइंट है वो 2 पहले इधर ट्रांसफर हो गया ठीक है 2 0 है ना 2 टाइम इधर 2 पहले इधर ट्रांसफर हो गया तो 0.8225 ये इसका आंसर आ गया ओके। और ये क्या है, स्टॉप हो गया आफ्टर 4 डिजिट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या इसको अदर ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके 3 to 9/400 है के पॉइंट तो ये हो गया 3290। अब ये 8 टाइम डिवाइड होएगा तो ये हो गया 3200 ओके। 4 8 जा 32 2 टाइम 0 फिक्स। अब रिमाइंडर आ गया 90 टैग के पॉइंट 2 जा ये हो गया 4 2 जा 8 2 टाइम फिक्स 0 100 पॉइंट ने 0 थ्रू किया ये आ गया 1000। नाउ 400 2 जा 800 ये आ गया 200 रिमाइंडर पॉइंट ने 0 थ्रू किया 5 जा ये आ गया 2000 0। अब यही राइट करना आपको कि 3 to 9/400 ये शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया
ये डायरेक्ट विदाउट आप डिवाइड किए, इसमें तो आपको डिवाइड करके शो करना है, लेकिन आप डायरेक्ट विदाउट डिवाइड इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.8225। ये कौन सा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ exercise 1.3 is complete. Now second question. Now question number second. You know that 1/7 is equal 0.142857 और ये 6 डिजिट पे है बार साइन, यानी ये डिजिट 6 डिजिट क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गई। Can you do predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? यानी इन सभी की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है और आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857 इवन है ये। ओके, तो फर्स्ट है 2/7, इसको अपन 2 × 1/7 राइट कर सकते हैं। इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो 2 को सेपरेट और 1/7 को सेपरेट कर लिया। ये इक्वल है 2 1 जा 2/7 एज इट इज, 2 1 जा 2/7। तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 2 × 0.142857 बार साइन। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 and 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ओके, और आफ्टर 6 डिजिट क्या टैग करना है? पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट टैग कर लिया, बट बार साइन इस पे भी आएगा। ओके, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और जो आंसर आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने इसका आंसर कितना फाइंड किया है? 0.285714 का बार साइन। 3/7 इसी प्रोसेसिंग में सेम प्रोसेसिंग होगी। 3 × 1/7 इज इक्वल 3 × 0.142857, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 25 and 1 24 and 1 25। ओके, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3 and 1 4। आफ्टर 6 डिजिट टैग ए पॉइंट फ्रॉम राइट साइड और बार साइन एज इट इज। 4/7, तो इसको अपन राइट करेंगे 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857 बार साइन। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को, तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 and 2 22, कैरी 2, 4 8 जा 32 and 2 34, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16 and 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1 5। आफ्टर 6 डिजिट टैग ए पॉइंट, यहाँ पे अपन 0 0 0 ऐसे ही राइट कर सकते। ओके, नाउ 5/7 इज इक्वल 5 × 1/7, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। 5 × 0.142857
5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 and 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 and 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 and 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 टेक ए पॉइंट आफ्टर 6 डिजिट और बार साइन यहाँ पे 0 भी आप राइट कर सकते हो। 6/7 6 into 1/7 6 into 1/7 इस वे में राइट किया इसको। 6 into 0.1 इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 142,857 बार साइन। ओके तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 and 4 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 and 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 and 5 17 1 कैरी और 6 4 जा 24 and 1 25 कैरी 2, 6 1 जा 6 and 2 8 आफ्टर 6 डिजिट टेक ए पॉइंट और बार साइन एज इट इज। तो ये हमने 2/7 3/7 6/7 4/7 5/7 ओवरऑल वैल्यूज फाइंड कर दी विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने आंसर फाइंड कर दिया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 0.6 और 6 का है बार साइन, इट मीन्स ये रिपीट होएगा 6 6 6 6 ओके और 0.47 और ओनली 7 पर बार साइन है ओके और 0.001 पे बार साइन है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार साइन है तो इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे बार साइन है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डिजिट पे बार साइन है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट पे बार साइन है तो इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में और 2 डिजिट पे बार साइन है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन को। ठीक है, और कैसे कराएंगे वो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और 3 डिजिट पे बार साइन है तो इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड में। इट मीन्स 1 डिजिट पे है तब तो 10 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 डिजिट पे बार साइन है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है और 3 डिजिट पे बार साइन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन को। ओके, जब वो क्वेश्चन कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होती है और उसको अपन P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में आपको करवा रहा हूँ 0.6। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको लेट कर लेंगे अपन x के इक्वल 0.6 बार साइन। तो x को अपन ने राइट किया 0.666 3 टाइम, ये बार साइन स्किप कर दिया हमने। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देते हैं। ओके, अब 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। ओके, तो 10 into x इज इक्वल 10 into यहाँ पे 3 डिजिट लिए ना, एक एक्स्ट्रा डिजिट ले लेंगे 0.666 3 टाइम लिया है, यहाँ पे 4 टाइम ले लिया हमने
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई कराना है तो 1 0 है ना, तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे है तो 1 टाइम 0 है, तो ये 1 टाइम आगे क्या हो जाएगा, रिप्लेस। तो ये आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में से ये लेस कर देंगे अपन, तो 10x माइनस एक्स, ओके, लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होएंगे और राइट राइट वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। ये है 6.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, इसमें से लेस करना है 0.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखो डॉट 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 और 666, ये पॉइंट के राइट साइड वाले तो टोटली क्या होगी, लेस होएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिए थे, यहाँ पे कितने लिए, 4। तो पॉइंट के बाद में जो भी मैटर है वो क्या हो जाएगा, टोटली लेस हो जाएगा। यूनिट में से यूनिट लेस हुआ, 6 में से 0 लेस हुआ तो क्या आ गया, 6। 10x माइनस एक्स आ गया 9x। ओके, x इज इक्वल आ गया 6/9। अब 3 की टेबल से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 9, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9। x इज इक्वल 2/3। ये आंसर आ गया। ओके, तो पॉइंट के बाद में 666 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के बाद में 666 डॉट डॉट डॉट, ये लेस हो गया। 6 में से यूनिट, 6 माइनस 0 क्या आ गया, 6। अब 9x इधर रह गया, x इज इक्वल 6/9, 3 की टेबल से कट कर दिया 2/3, तो p/q फॉर्म में इसको राइट कर दिया। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो रेशनल नंबर ही होती है। अब इसको अपन क्या राइट करेंगे, सेम वे में, लेट सेकंड पोर्शन करना है 0.47 और 7 के ऊपर बार साइन है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो लेट x इज इक्वल 0.47 का बार साइन। तो अब इसको बार साइन को रिमूव कर देंगे, तो 0.4777। ओके, ये 3 टाइम हमने 777 राइट कर लिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वे में, ये लाइन राइट कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 both sides। ओके, नाउ ये हो गया 10x, 10 इंटू एक्स, और इधर भी 10 से ही करेंगे, बट यहाँ पे 3 टाइम्स 7 लिया है, यहाँ पे 4 टाइम्स 7 ले लेंगे। ओके, तो 0.4777 और 7, या यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर। अभी इसको मल्टीप्लाई किया नहीं है। अब ये पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है ना, 1 के आगे ये आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 4.7777। ओके, यहाँ पे 4 डिजिट है ना आफ्टर पॉइंट, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट। ओके, ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब वही वर्क करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स
लेफ्ट में से लेफ्ट लेस किया 4.7777 डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, ये तो लेस हो गया 777 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, 4.7 में 0.4 लेस करना है, तो ये होता है टेंस, टेंस में से टेंस लेस करेंगे, पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट आता है पॉइंट वाले एडलेस में। ओके, तो ये टेंस होता है, 10th पार्ट होता है, ये 10th पार्ट। 7 माइनस 4 क्या हो गया 3, ये तो टोटली रिमूव हो गया, डॉट 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 एंड 777 एंड डॉट डॉट डॉट, ये तो रिमूव हो गया। 4.7 में से 0.4 लेस करना है, 7 माइनस 4 3 आ गया, पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट, 4 माइनस 0 4, ये हो गया 9x। x इज इक्वल आ गया 4.3/9। अब ये पॉइंट रिमूव कर देंगे अपन। ओके, तो ये डाउन में पॉइंट जब भी रिमूव होता है तो 1 आता है, 1 डिजिट है तो 1 0, ये आ गया 43/90, ये वैल्यू आ गई x की। तो x, यहाँ पे x की जगह अपन क्या राइट कर सकते हैं, x की जगह 0.6 का जो बार है वो किसके इक्वल 2/3 के इक्वल। ठीक है, ये अपना फाइनली आंसर हो गया। x की जगह अपन वापस 0.47 का बार साइन और 43/90। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। x की रिएगेंट वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ओके, तो 1 लेटर रिपीट करें, 1 डिजिट रिपीट करें तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं उससे एक एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, क्योंकि पॉइंट आगे रिप्लेस होएगा ना। ओके, नाउ पार्ट थर्ड में 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। पार्ट थर्ड 0.001 और 3 डिजिट पर बार साइन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट x इज इक्वल 0.001 बार साइन, तो इसको बार साइन को रिमूव करेंगे, 0.001001। ओके, ये 2 टाइम हमने इसको राइट कर लिया, इस सेट को 001 को। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मल्टीप्लाइंग बाय 1000, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 इन बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे एक सेट एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, तो 1000 इंटू एक्स इज इक्वल 1000 इंटू ये 2 सेट ले लिए ना, यहाँ पे 3 सेट एक्स्ट्रा ले लेंगे, 3 सेट ले लेंगे, 001 001 एंड एक और एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 1000x हो गया, और 3 0 है ना, तो 0.123 यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा, तो 0 को राइट करने की नीड नहीं है, 1.001001 और डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 7, 1000x में से x लेस किया 1.001001 डॉट डॉट डॉट, इसमें से लेस कर देंगे अपन। इक्वेशन फर्स्ट में राइट साइड में है 0.001001 डॉट डॉट डॉट। अब पॉइंट के बाद में ये सारे डिजिट और डॉट 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 साइन, ये क्या हो जाएगा, रिमूव।
वन में से 0, यूनिट में से यूनिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 999x, x इज इक्वल 1/999। तो x की वैल्यू क्या थी, 0.001 का बार साइन इज इक्वल 1/999। ये अपना फाइनली आंसर होगा। इसको अपन ने P/Q की फॉर्म में क्या कर दिया, राइट कर दिया। ओके, तो इतने क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।